सब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। ಈಗಾಗಲೇ NR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 800 ಕೇಸಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇವ್ ದ ಸಿವಿರಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿವಿರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ BD ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ 150 ಬೆಡ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 50 ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಪ್ರೇಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಸೆಸರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ 150 ಬೆಡ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಈಗ NR ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿನೇ ಒಂದು ಈ ಥರ ಸೆಂಟರ್ ಆಗೈತೆ ಅಥವಾ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ? ಸೊ ಈಗ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ NRನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. 3 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ MLA ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ವಿತ್ ಯು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಪೋರ್ಟು ಕೂಡ? ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MLA ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जो हालात हमारे सामने अभी पेश आ रहे हैं, कोविड का जो सिलसिला गुज़िश्ता साल रहा, हमारे यहाँ फारुकिया और आंडलस में कोविड केयर सेंटर्स जमाती एतबार से बहुत सारे अहबाब मिलकर ज़ाती तौर से शुरू किया गया था. उसके बाद हुकूमत से भी है ना उसमें बहुत सारा सपोर्ट हासिल हुआ. लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा PP किट्स और मेडिकल के जो मेडिसिन है ये 2 फारुकिया और अंडलस में दिया गया था. तो इस मरतबा क्योंकि कॉलेजेस चल रही हैं, BD वर्कर्स हॉस्पिटल में शुरू करने का मंसूबा इससे पहले भी रहा. तो अभी आज जो हालात हमारे सामने दिन ब दिन बिगड़ रही है, तो इसे फौरी तौर से शुरू करने की मांग गुज़िश्ता 3 माह से मैं करता आया हूँ. आज कॉर्पोरेशन कमिश्नर हमारे दरमियान आई हैं और इंशाल्लाह पीर से यहाँ शुरू करने के पूरे इंतज़ामात हमारे सामने हैं. 16 बेड ऑक्सीजनेटेड अब हमारे सामने है, इसे 50 तक करने की गुंजाइश है. और साथ में एक 10 बेड ICU बनाना और एक 5 से 6 वेंटिलेटर्स लाने की भी हमारी कोशिश है. तो जिससे एक हॉस्पिटल की भरपूर शक्ल देने की हमारी कोशिश है. तो यहाँ के हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं इनकी भी ये लगातार हमारे साथ मांग है
कि यहाँ पे है ना कायम तरीके से एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बरसों का ख्वाब आज हमारे सामने पूरा हुआ। जी सर, जैसा कि वैक्सीनेशन का जो अवेयरनेस है कहीं ना कहीं एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम दिखाई दे रहा है, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को? नहीं, वैक्सीनेशन के सिलसिले में जो चीज़ें आवाम के दिल में थी वो आज दूर हो चुकी हैं। रमज़ान होने के माह रमज़ान के खातिर है ना लोग रोज़े के हालत में है ना इंजेक्शन लेने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उलमा का ये बात है, क्योंकि उलमा दीन की बात हमसे है ना बेहतर कह सकते हैं। हमारी ये मांग हुकूमत से है और है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से थी कि टाइम को एक्सटेंड किया जाए। डीसी हैज़ ऑलरेडी ऑर्डर्ड 6 से 8 बजे तक है ना ये करें। मैं अपील करता हूँ कि वैक्सीनेशन, क्योंकि मैं खुद वैक्सीनेशन लिया हूँ, हमारे जितने कॉर्पोरेटर्स हैं वैक्सीनेशन लिए हैं, इसमें कोई चीज़ से न घबराने की बात नहीं है। ये हमारी हिफाजत के लिए है। इसे मैं अपील करता हूँ कि लोग है ना वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन से हमारे सामने है ना ये जो कोविड का खतरा है बिल्कुल है ना कम हो सकता है जी। ये जिस तरीके से गाड़ी चलाने वक्त हेलमेट पहनना ज़रूरी है, हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट अगर अचानक हो जाता है तो सिर को चोट लगने से हम बच सकते हैं जी। तो इसी तरीके से वैक्सीनेशन का काम है। कोविड जो हमारी जान ले सकता है उससे है ना बचने के लिए है ना ये कोविड का इंजेक्शन लेना पड़ता है जी। तो हो सकता है कि लोगों के जहन में ये बात आ चुकी है। मैं अपील करता हूँ कि हमारे पास जितने भी सेंटर्स हैं, एनआर में है ना लगभग 8 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं। तुम्हारे गिराबाई पालिया बीडी वर्कर्स हॉस्पिटल के नीचे हमारे है ना हॉस्टल में, और कैटमनहल्ली पीएचसी सेंटर में, बेनीमंटप पीएचसी सेंटर में, राजेंद्र नगर पीएचसी सेंटर में, ये हर जगह कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। जहां लोगों को सहूलत जैसी भी मिलती है पहली फुर्सत में वैक्सीनेशन लें। लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा फील हो रहा है कि सही एक जानकारी कहीं नहीं मिल रही है कोविड के ताल्लुक से। एक ऐसा हेल्प सेंटर ओपन किया जा सकता है कि लोगों में अवेयरनेस कोविड क्या है करके अवेयरनेस पहुंच सके। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे सर? एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में कल हेल्थ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और हमारी मीटिंग पूरे ऑफिसर्स के दरमियान में हुई थी, और ये तय किया गया है कि लोगों को और ख़ास तौर से मरीज़ों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है या फिर है ना उनको दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए एक कायम हेल्पलाइन ये है ना शुरू करने वाले हैं, जिससे है ना लोगों को है ना सहूलत फराहम होगी। और इसके साथ साथ जो इंजेक्शन्स और दवाएँ भी मिलने में जो दिक्कत हो रही है, इसके लिए भी ड्रग कंट्रोलर के पास एक हेल्पलाइन का है ना शुरू करने की ऑर्डर्स किए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में है ना सहूलतें जहाँ कहीं भी दिक्कतें हो रही है ये सब तो हमारे साथ है। इंशाल्लाह जो कोविड से जंग चल रही है इसमें हमें जो साथ दे रहे हैं उसके साथ अवाम का भी हमें साथ चाहिए। सिर्फ हमारा नहीं है, अवाम भी हमारे साथ चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो तकलीफ तुम्हें और हमें पड़ना है। इस वजह मैं आज ज़रा गुजारिश करता हूँ कि ये कोविड सेंटर एनआर बहुत अहमियत है और बहुत ज़रूरी है। जैसे फारूकिया और एम्बुलेंस जैसे खोले थे, इस वास्ते इससे बड़ा वाला इधर खोलेंगे इंशाल्लाह। हमें जो है उलमा के साथ जो मस्जिद में अलाउंस भी करा रहे हैं, हम पब्लिक में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन लेने के वास्ते। अगर ये सब हमारा खुद हमें भी ले चुके हैं वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज को जप रहे हैं, आप लिए तो इंशाल्लाह आपकी फैमिली को और आप बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन। ये कोविड जो है बहुत स्ट्रांग है, जो पहला वाले से स्ट्रांग है। इस वास्ते आज जो है ना गुजारिश कर रहे हैं, जैसे एमएलए साहब बोले, हमारे कमिश्नर बोले, बार बार पंडू साहब बोल रहे हैं, बशीर भाई बोल रहे हैं, तो एक अवाम में एक मैसेज जा रहा है, लेकिन वो जो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है गलत मैसेज उसे नक्को देखो। इंशाल्लाह वैक्सीनेशन पहले ले, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर पब्लिक अवाम चाहती है, अगर बीच में सेंटर्स करें, पहले भी डीसी साहब बोल चुके हैं कि मोबाइल टीम भेजते हैं, अगर 100 से ज़्यादा वैक्सीनेशन लेना है तो उधर ही मैं अरेंज करता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद अगर हुआ तो मोबाइल टीम भी ले सकते। देखिए, सबसे पहले ये जो भी काम हो रहा है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर मेरी हॉस्पिटल के अंदर
यहाँ पर अगर से कैंप अगर से खुल जाए तो लोगों को बहुत सहूलत होती है, चाहे बशीर साहब की वार्ड हो चाहे मेरी वार्ड हो, सब दो भी एक ही है। ऐसी बात नहीं है कि राजू नगर अलहदा, शांति नगर अलहदा, होशियार नगर अलहदा, लेकिन बीमारी सबको आती है। इंशाल्लाह अगर से ये हॉस्पिटल अगर से यहाँ पर कोरोना का इलाज जनाब MLA साहब ने भी कहा है कि 16 ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, 16 बेडें भी यहाँ पर है, 50 करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी 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 बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हो गया तो यहाँ के आदमियों को बहुत सहूलत मिल जाएगी। शुक्रिया बशीर भाई। अभी जैसा कि पंडू भाई ने कहा कि उनको बहुत खुशी हो रही है कि इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी कोविड की है वैसी आज आपके करीबी आपके वार्ड के करीबी इलाके में ओपन की गई है, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे NR क्षेत्र के MLA साहब ने आज ये कदम उठाया है जो 50 बेड रेडी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए सेठ साहब को हमें, कि आवाम एक परेशानी की थी, एक बेचैनी थी कि आवाम को अब ये जो वबा बढ़ रही है इसे कैसा ख़त्म करना है। अगर इमरजेंसी आना पड़ेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में जाने के बावजूद भी 10-10, 5-5 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी वहाँ पर मौतें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यह जो कदम उठाए बहुत अच्छी बात है। हम MLA साहब के साथ हैं, जब तक कोशिश करेंगे, जब तक ये हवा नहीं जाएगी, जब तक भी उनके साथ रहेंगे, कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। MLA तनवीर सेठ साहब का आप शुक्रिया अदा करेंगे कि इतनी सारी कोशिशें इस हल्के के अंदर कोशिशें करते हैं हर हमेशा, चाहे वो हम कौम हो या खुद मुसलमान की जो कम्युनिटी है, उन लोगों का उनके साथ इनका ताउन कभी भी बढ़ चढ़ कर रहता है। तो आप किस तरीके से आप शुक्रिया अदा करेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है। आवाम उनको एक जिम्मेदारी दी हुई है, वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिम्मेदारी के साथ हम सब उनके साथ मिलकर उनका साथ देकर इस बीमारी को लड़ने के वास्ते जो अब यहाँ पर पेशेंट आएंगे उनकी देखभाली के वास्ते उनको जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के वास्ते हम उनको एक डिमांड करेंगे। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है कॉरपोरेटर से पहले ये जो बीडी वर्कर्स हाउसिंग कॉलोनी जो बनी है वो और ये हॉस्पिटल वगैरह जब आई है वहाँ से मैं इस कॉलोनी का सेक्रेटरी हुआ जी। और मरहूम अल्लाह जैसे सेठ साहब इसके सदर रहे, वो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जो है अपने कामों में साथ ले रहे और काम चलता रहा। लेकिन हालात के मुताबिक यहाँ एक 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये होना बहुत अहम और ज़रूरी है और बेहतरीन काम यहाँ पर बीडी वर्कर्स और सिनेमा गोयर्स के लिए चल रहा है। लेकिन अभी जो हालात गुजर रहे हैं उस हालात के तहत इसे कोविड केयर सेंटर और कोविड केयर हॉस्पिटल बनाने का जो फैसला जनाब तनवीर सेठ साहब का पूरी कोशिशों के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में पूरी जद्दोजहद करने के बाद ये हुआ है। इसे मैं खुशामदीद कहता हूँ कि इसका होना यहाँ पर ज़रूरी था। ये इस बिलखुसूस 5-6 वार्ड के लिए कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल ये पहली हॉस्पिटल होगी और एक बेहतरीन इंतज़ाम होगा और इंतज़ामिया कमेटी भी जो है बेहतरीन तरीके से बनकर है। DC का कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन कमिश्नर का कॉर्पोरेशन है, हर एक जो है इसमें ज़्यादातर हिस्सा लेकर एक पूरी भरपूर हॉस्पिटल बनकर जो है ये जो बीमार लोग हैं उनका इलाज करने में आसानी होगी। शुक्रिया ಜನತೆಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆತು ಇದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.